3-day फर्स्ट हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2024 की इनॉग्रेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम हिलाल इम्तियाज मिलिट्री। सर आपको हम तमाम लोगों की जानिब से आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारी इस तकरीब के अंदर तशरीफ़ लाए। उनके साथ साथ जितनी डिग्निटरीज यहाँ स्टेज पे बैठी हैं, जितने भी ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। फर्स्ट हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2024 है, जैसे हमने कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेक्टर है और ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी एग्जिबिटर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस हेल्थ केयर एक्सपो में। लेकिन उससे ज़्यादा शुक्रिया उन बच्चों का कि मैंने आज देखा सुबह से बड़ी तादाद में हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे यहाँ पर मौजूद थे। तो वो तमाम बच्चे अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाएं, क्योंकि मकसद आप ही हैं, मकसद आप ही हमारा फ्यूचर हैं जिनके लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। और इस फ्यूचर को बेहतर बनाने में एक शख्सियत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, चाहे आप आइडियाज़ की बात कर लें, चाहे आप पाईमेक की बात कर लें, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, चाहे आप कराची टेबल प्रीमियर लीग की बात कर लें, क्रिकेट की जानिब चले जाएं, हर सेक्टर को आप उठाने में, बनाने में और हमारे मुल्क को आप उस सेक्टर को एक राह में लेके आने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए, कोई और नहीं। मैं वेलकम नोट के लिए मदू करूंगा आपकी पुरजोर तालियों में यंग डायनामिक बिजनेसमैन एंड द सीईओ ऑफ बदर एक्सपो सॉल्यूशंस मिस्टर ज़ुहैर नसीर। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। मिस्टर ज़ुहैर नसीर, सीईओ बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, the patron body of this healthcare expo and conference. Bismillah Rahman Rahim. Honorable Chief Guest, Rear Admiral Mohammad Salim, Hilal Imtiaz Military Commander Karachi, President KCCI, Mr. Iftikhar Ahmed Sheikh, Professor Dr. Farhan Isa Abdullah, CEO, Dr. Isa Laboratory and Diagnostic Center, Professor Sayyid Shahid Noor, Orthopedic Surgeon, Head of Orthopedics, Liaquat National Hospital, Chairman Saman Shifa Foundation, Dr. Naveed Rashid, Principal Liaquat College of Medical and Dentistry, Dr. Samreen Asim, VC, Dawood University. Distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is a proud moment for Badr Expo Solution to be the pioneer of a major breakthrough event, Healthcare Expo and Conference 2024. This event aims to enhance trade and investment in the health sector and boost medical tourism. It also seeks to create awareness and popularize medical practice locally and internationally, showcasing available expertise and technology. Badr Expo Solution excels in connecting people, creating resources, and coordinating events. Our mission is to make new trends and innovations accessible globally. We establish B2B matchmaking platform that unites buyers and sellers from around the world on a single platform, fostering connections and collaboration across the industry. The main goal of this event is to bring optimal patient care with best clinical practices with global expertise for a consistent and dynamic improvement. At the same time, this forum also promised to bring opportunities to explore business development, import substitution, and export potential of Pakistan in the healthcare sector. Beside the expo, the scientific sessions at the conference are meticulously organized, addressing all major healthcare challenges. Renowned speakers will share their expertise on diseases, treatment, and prevention, which will undoubtedly enhance the overall healthcare system, improve quality of care, and regulate healthcare spending. I am thankful to each one of you who have graced the occasion to make it a memorable event. I would like to express my sincere thanks to all our exhibitors, sponsors, supporting bodies, and media partners who came forward wholeheartedly to make this event a success. I hope
you will take advantage of this platform and engage in B2B networking over the next 3 days to maximize the potential of the crucial event for transforming Pakistan healthcare system. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Zuhair Nasir, CEO, Badr Expo Solutions. And Badr Expo Solutions is the patron body of this Healthcare Expo and Conference 2024. और अब मैं जिन शख्सियत को मदऊ कर रहा हूँ गुफ्तगू के लिए, जहाँ बदर एक्सपो सॉल्यूशंस पैट्रन बॉडी दिखाई दे रही है, वहीं इन्होंने जुड़ के दिन रात शानदार अंदाज से काम किया और जो आज आप ये सारा मेला देख रहे हैं, इसको सजाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा। मैं ओवरव्यू ऑफ हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ करूँगा द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हेल्थ केयर एक्सपो 2024 डॉक्टर आबिद अब्बास शेख साहब। आपकी पुरजोर तालियों में, बहुत एफर्ट किए डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर आबिद अब्बास शेख, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हेल्थ केयर एक्सपो। अस्सलाम वालेकुम, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, ख़ास तौर पर कमांडर कराची साहब जिन्होंने अपनी गोनागू मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला और हमें सपोर्ट किया, हमारे लिए वो आगे बढ़े। तमाम गेस्ट्स, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जमा हैं। एक बड़ा चैलेंज था, मगर इस चैलेंज से पहले मैं बात करूँगा डिविनिटी की, अलूहियत। हेल्थ केयर वो शोबा है जिसके अंदर कुदरत अगर उसको ईमानदारी से किया जाए तो अल्लाह ताला अपनी कुछ सिफ्त उस बंदे के अंदर डाल देता है। आई बिलीव इन इट। मैंने देखा है कि अलूहियत जो है ना, उसका एक टच आना शुरू हो जाता है। और यही बात अहादीस से भी साबित है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अवामुन्नास के लिए बेहतर है। और हेल्थ केयर वो शोबा है जो कि हर एक को टच करता है और ख़ास तौर पर अवामुन्नास के लिए है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना ये ख्वाब था और मैं यहाँ पर इंतहाई ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ हमारे बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, उसकी पूरी टीम। दो नाम मैं ख़ास तौर पर लूँगा, उसमें जनाब ज़ुहैर नसीर साहब जो कि एमडी हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के, और हमारे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं तनवीर अब्दुल्ला साहब। इन्होंने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, जिस तरीके से मेरे प्रेशर मोमेंट्स के अंदर मुझे काम डाउन किया कि मेरी एनर्जी जो है वो बढ़ती चली गई। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो था साइंटिफिक सेशन। साइंटिफिक सेशन के अंदर टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना, वो तमाम चीज़ें अपनी तकरीबन 35 साल की हेल्थ केयर से रिलेशनशिप के नतीजे के अंदर, कि जो हमारे मुल्क के चैलेंजेस हैं, जहाँ पर तवज्जो की ज़रूरत है। और बदकिस्मती ये है कि तवज्जो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत काम हो रहा है, बेइंतहा काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट ने, बहुत काम किया है। आई एम रियली अप्रिसिएटिव टू इट। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने बेहिसाब काम किया है, उनके हॉस्पिटल्स, उनकी हेल्थ केयर और हेल्थ केयर से रिलेटेड तमाम चीज़ें, मगर हमारी जो ज़रूरियात हैं वो उससे बहुत ज़्यादा है। स्टिल मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो वसाइल हैं वो कम नहीं हैं, उन वसाइल को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। उस डायरेक्शन को देने के नतीजे के अंदर हमने इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, इस एक्सपो का इनकाद किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चीज़ जो है हमारे सामने है। अगले जो 3 दिन है, आज दोपहर से शुरू होगा, 10 मुख्तलिफ सेशंस हैं। 10 मुख्तलिफ सेशंस के अंदर टॉप ऑफ द लाइन लोग, की ओपिनियन लीडर्स, वो लोग जिनका तजर्बा जो है वो शायद मेरी उम्र से भी ज़्यादा है अगर हम आवर्स को काउंट करें, तो वो लोग जो है वो मौजूद होंगे और अपनी राय, अपनी गुफ्तगू से तमाम ऑडियंस को मुस्तफ़ीद करेंगे। और हमें यहाँ नहीं रुकना, हमें आगे बढ़ना है। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे के अंदर हम लोग वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो डॉक्यूमेंट हम पॉलिसी होल्डर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें फॉरवर्ड करेंगे कि जनाब हमने ये एक इकट्ठे हुए, जमा हुए, सोचो विचार की, और उसके नतीजे के अंदर हमारी ये आरा हैं, इन्हें आप लोग जो हैं वो सब पढ़ें, समझें और देखें। जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं मगर जहाँ पर मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है वहाँ तवज्जो दें। तो एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सब लोगों का, ऑनरेबल गेस्ट्स का, कि वो लोग जो हैं वो उन्होंने हमारी सरपरस्ती की और इंशाल्लाह इसको हम कामयाब बनाएंगे और आइंदा भी ऐसे
मौके, ऐसी इवेंट्स हम करते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Abid Abbas Sheikh, Secretary Healthcare Expo 2024. कुछ हमारे मेहमान अपनी मसरूफियात की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, उनमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हमारे मुल्क की, वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड जो पैट्रन चीफ भी हैं, प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी साहब, जो आज हमारी तकरीब में शिरकत नहीं कर सके, लेकिन वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए दिखाई दिए, और उनका एक पैगाम है जो आपको इस बात की गमाजी भी करेगा वो किस तरीके से इस हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहे। प्लीज़ वीडियो मैसेज प्ले कीजिएगा। पैट्रन चीफ प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी, वाइस चांसलर DUHS. Greetings and Assalamu Alaikum. As Patron-in-Chief of the Healthcare Expo and Conference this year, I am happy to welcome you all to this mega healthcare event where strategic partners have come together for a global collaboration for better healthcare for all. Dow University of Health Sciences is a strategic partner in this event. I could not be there with you all physically due to last moment commitments at the Dow University itself. I hope you have registered and will participate in the 3 days event in order to forge partnerships with leading professionals from across the medical and pharmaceutical industry. The organizer, Badr Expo Solutions, has taken the initiative to strategically plan this healthcare expo and conference in order to showcase the latest healthcare innovations and technology to a wide audience of healthcare professionals, including the pharmaceutical industry, healthcare workers, and even patients. This event will hopefully address the healthcare system challenges and its need for technology transfer, with both business to business and business to consumer activities taking place. This approach will help in developing a patient-centered healthcare system as seen all over the world, an aim which is still a goal for Pakistan to achieve. For quality healthcare, the private sector has to work in tandem with the industry, and we need the government to facilitate and collaborate with us in order to achieve the universal goal of providing equitable quality healthcare for all, in line with the WHO's Sustainable Development Goals 2030. Since our healthcare system is overburdened by our patient population and the prevalence of communicable and non-communicable diseases, we have to combat a number of challenges, including firstly, increasing the number of healthcare facilities in line with our growing population, then increasing the general awareness for prevention of illness, making the healthcare facilities available in the interior as well as the urban cities of Pakistan, making the overall cost of care affordable through subsidized rates and government intervention, optimizing patient care, though through up-to-date clinical practice and evidence-based medicine guidelines. To achieve all of these, we have to go back to the basics by working on our existing infrastructure in line with national and international standards of healthcare delivery. Pakistan is not lacking in talent nor innovative technologies. However, we do lack implementation strategies. Therefore, during the 3-day expo, there will be a scientific session where all the major healthcare challenges like these will be discussed and addressed in order to come up with realistic solutions. This is where keynote speakers from the healthcare and pharmaceutical industries will provide their expertise and input on technology transfer, new treatment, and prevention modalities. I appreciate the role of the organizing committee, the organizers, and the partners in organizing an expo that addresses a wide range of challenges. I hope you all will participate in this expo and conference in order to network and showcase your innovative technologies for the betterment of all. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Saeed Qureshi.
पैट्रन चीफ को हमने बहुत मिस किया आज की तकरीब में, आज की इनाग्रेशन सेरेमनी में सर, लेकिन आप आगे हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी तो हमारा 3 दिन का मेला आज से सजना शुरू हुआ है। आपने देखा होगा किस तरीके से लोग जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और जितने लोग आप सब इस अम्ब्रेला तले जमा हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेक्टर को हम सब ने लेके चलना है, क्योंकि मेरी वालदा इस वक्त कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं और वो रेडिएशन के लिए गई हुई हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पूरा घर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप सब एक घर की तरह हैं, और हम सब ने अपने इस घर को, जो हमारा पाकिस्तान है, इसको बेहतर बनाना है मिलके, अपने लोगों के मसाइल कम करने, उनमें बेहतरी लेके आनी है। और इस वक्त मैं मदू करूँगा प्रिंसिपल लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री प्रोफेसर नवेद कुरैशी साहब को। प्रोफेसर नवेद कुरैशी साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Honorable Chief Guest, distinguished guests, participants, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं बदर एक्सपो सॉल्यूशन के CEO ज़ोहैर नसीर साहब, Dr. Abid, Conference Secretary, and his team, I would like to congratulate them. ऐसा इवेंट का विजन करना, उसको प्लान करना, and then eventually to execute to the minute details requires lot of discussion and lot of planning. So, sir, congratulations for holding this event. तो कुछ हफ्ते पहले ज़ोहैर नसीर साहब की टीम हमारे पास, बिकॉज आई एम अ डेंटिस्ट, तो उनकी टीम हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि भाई आप इसका पार्ट बने, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड। दैट वाज लाइक कपल ऑफ वीक्स अगो। तो बिकॉज आई रिप्रेजेंट डेंटिस्ट्री, वी वर वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट। हमारा एक इवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इसी जगह पर 2006 में हुई थी, मैं उसका कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी भी था। तो ज़ोहैर साहब की टीम ने हमें बताया कि आपको एक डेंटिस्ट्री को छोटी सी जगह दी गई है, तो आपको पता है पाकिस्तानी, हमने फ़ौरन जगह एक्सेप्ट की और फिर हम इनके पीछे पड़ गए कि भाई the response, because there are 57 dental colleges throughout Pakistan, and we wrote to everyone and everybody wanted to participate, and you really wanted a big space. तो हम इनकी टीम के पास वापस आए, हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें तो बड़ी जगह चाहिए, और उन्होंने हमें जगह दे दी। फिर हम इनके पास वापस आए, नहीं हमें और बड़ी जगह चाहिए, और they said we have limitations. और फिर हर जगह पे ज़ोहैर साहब पर्सनली इंटरवीन। बहुत दफ़ा ये पाकिस्तान में नहीं होते थे, मैं इनको मैसेज करता था, फ़ोन करता था, and eventually he gave us a blank check and he said, do whatever you want for dentistry in Pakistan. So we are very thankful to you, ज़ोहैर साहब, कि आपने इतनी सपोर्ट की हमारे लिए। मैं आपको डेंटल इवेंट के बारे में बता दूं। इट्स अ वेरी यूनिक प्लान वी हैव डिवाइज्ड फॉर द डेंटल फ्रेटर्निटी। हमारा जो फुटफॉल वी आर एक्सपेक्टिंग इज अराउंड 1500 स्टूडेंट्स एंड डेंटिस्ट हु इज गोइंग टू विजिट अवर हॉल। दिस इज हॉल 2। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आइए। तो देयर आर 6 कैटेगरीज, देयर आर 6 यूनिक कैटेगरीज। द नंबर 1, which is starting from 1 PM today, is table clinic projects. तो टेबल क्लिनिक डेंटिस्ट्री में हम क्या करते हैं, everyone has to come with a different project and they have to present. The overwhelming part, जब हमने 2006 में कॉन्फ्रेंस की तो हमारे पास 10, 12, 13, 14 टेबल क्लिनिक्स रजिस्टर होती थी। Every table clinic is represented by 4 or 5 students, supervised by 1 senior person. तो अभी इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे पास more than 70 table clinics has been booked. और अगर आप हॉल 2 में आके देखेंगे 1 बजे के बाद, तो उधर एक रौनक लगी हुई होगी। We have 150 posters. This is again all research based. ये सारी चीजें competition based हैं। तो 70 टेबल क्लिनिक्स हैं, 150 पोस्टर्स हैं। सारे जो जजेस हैं हमारे पोस्टर्स के, they are from international editorial boards and they are doing it with the Zoom.
The third, tomorrow we are starting a scientific session which would start from 9 a.m. and would finish by 3. So state-of-the-art lectures are related to dentistry. Then we have got 3 paper session. Uske baad, again a unique competition among students, and we have 17 teams related to quiz competition. Again, it is a competition. Day 3, डेंटिस्ट्री को हम AI से मर्ज करना चाहते थे. डेंटिस्ट्री में AI एंड सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है. तो हमने क्या किया, पॉडकास्ट, रील्स एंड शॉर्ट फिल्म कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया इन डेंटिस्ट्री. और हमने थीम्स ऐसे रखी कि इफ़ यू आर अ डेंटिस्ट, व्हाट वुड यू डू एट योर होम, व्हाट वुड यू डू व्हेन यू आर नॉट डूइंग डेंटिस्ट्री. तो बच्चों ने, लोगों ने, दे हैव पार्टिसिपेटेड ओवरवेलमिंगली इन ऑल दीज 3 कैटेगरीज. तो शॉर्ट रील्स, फिल्म्स एंड पॉडकास्ट. और हमने जजेस इसके लिए सारे मीडिया से बुला लिए, और दैट इज इंशाल्लाह ऑन द 3rd डे. इन सब कॉम्पिटिशन्स की जो प्राइज मनी है, डॉक्टर जोहेर साहब वॉज वेरी काइंड इनफ to finance all 6 categories, which itself becomes around 2 million rupees. So thank you very much again, Zohir Saab. So we are very thankful to Badr Expo to give us this opportunity to dentistry, this platform, so that we can celebrate this expo here, and we hope inshallah we'll do it in future as well. Thank you very much. Thank you very much, Professor Naveed Qureshi, Principal, Liaquat College of Medicine and Dentistry. Thank you very much, sir, once again. और ये हमारी इस इनाग्रेशन तकरीब में बहुत सारी नोटेबल पर्सनैलिटीज़ आ चुकी हैं, जिनमें ऑनरेबल कॉन्सल जनरल रशिया मिस्टर डिमिट्री पेट्रोव. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड अटेंडेंस. ब्रिगेडियर तारिक कादिर, CEO रेस्क्यू 1122. सर, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया. और ये इसके बाद मैं स्पीच के लिए मदऊ करूँगा. पाकिस्तान नेवी ने इन्हें भी ऑनरेरी कमांडर का ओहदा दिया है, लेकिन समाजी खिदमात में बहुत आगे रहे. CEO डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला. आपकी पुरजोर तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला. Assalamu alaikum ji. It's an honor to be here. Admiral Mohammad Salim साहब हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री की परमिशन से ये अमेजिंग इवेंट है. दिस इज़ एन अमेजिंग इवेंट. हमारी उम्र गुजर गई है कॉन्फ्रेंसेस में, लोकल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाते जाते, लेकिन जो बदर एक्सपो ने इस दफ़ा किया है, दैट्स अ बेंचमार्क एंड अ लैंडमार्क, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट जोहेर, नसीर एंड द होल टीम ऑफ बदर एक्सपो. मैं इसमें इतना इन्होंने अभी मैं थोड़ा सा बताता चलूँ ऑडियंस को. इसमें काफ़ी एग्जिबिटर्स भी हैं और काफ़ी डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के भी हैं लोग. बोलने से पहले मैं ज़रूर वेलकम करूँगा द बिग टीम ऑफ PNS शिफा एंड नेवी और कमांडेंट PNS शिफा कमोडोर मोहम्मद रफ़ीक साहब एंड टीम के साथ. ये भी रेवोल्यूशन है, थैंक्स टू एडमिरल नवेद अरशद साहब, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फिलहाल निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, जिनकी भरपूर सपोर्ट रही है इस इवेंट के लिए. और ये इवेंट का जो पूरे पाकिस्तान में जाना और ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करना, उसमें नेवी का बहुत बड़ा जो है सपोर्ट है, बैकिंग है. और वो इस वजह से भी है क्योंकि ज़ोहेर नसीर साहब और बदर एक्सपो मिलिट्री के साथ बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, जिसका बेंचमार्क इवेंट आइडियाज़ है, जो दुनिया से लोगों को पाकिस्तान में इनवाइट करके हमारी क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ और स्किल्स दिखाता है. मैं जो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने कहा कुछ चीज़ें मैं ऐड कर दूं क्योंकि मैं इनके साथ इन्वॉल्व हुआ, और एवरी डे वॉज अ सरप्राइज. एक्साइटिंग इवेंट्स हो रहे थे. पहले तो ये पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ होने ये लगा है कि मेडिकल में
आई ऑप्थेल्मोलॉजी वालों की अपनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो इंटरनल मेडिसिन की अपनी होती हैं, ऑर्थोपीडिक्स की अपनी होती हैं एंड सो फोर्थ। ये पहली, जबकि इंसान की बॉडी एक कंपोनेंट है और सारी दवाइयाँ भी जो दी जाती हैं अलग अलग चीज़ों में, वो एक दूसरे से दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, और हॉलिस्टिक अप्रोच कभी नहीं थी। जो इस इवेंट में हॉलिस्टिक अप्रोच हुई है, ना सिर्फ के मेडिकल के ऑल प्रोफेशंस आर पार्टिसिपेटिंग बट अलाइड, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट्री, फिजिकल थेरेपी एंड रिहैब, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक्स एंड सो फोर्थ। तो ये जो कोलैबोरेशन है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की हेल्थ क्वालिटी डिलीवरी के लिए बहुत एक संग मील होगी। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि पाकिस्तान इसके थ्रू, इस इवेंट के थ्रू, जिस तरह से आइडियाज़ बदर एक्सपो करता था, उस तरह से पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में मेडिकल डिप्लोमेसी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान, दुनिया एक ग्लोबल विलेज और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज भी इस कॉन्फ्रेंस की तरफ से जा रहा है। और ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो विज़न है और SIFC का विज़न है कि पाकिस्तान जो है वो पैसे कमाए सेल्फ इंडिजिनस सोर्सेज से, और उसके लिए शाहिद नूर भी बैठे हैं सामान शिफा के साथ, कि पाकिस्तान हाई क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिकल डिवाइसेस बनाए कोलैबोरेशंस के साथ और इंटरनेशनली ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस का प्रोवाइडर बने, जो कि $1,000 बिलियन की मार्केट है। एक और चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसमें विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़ोर दिया गया है, और जिस तरह से आप स्टेज पे भी देख रहे हैं कि दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की वाइस चांसलर समरीन हुसैन बैठी हैं, जो कि सारी विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको स्टॉल्स में हर जगह पे विमेन नज़र आएंगी जो इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो कि एक और बेंचमार्क है कि एक स्ट्रेंथ है कि अगर मेन एंड विमेन पाकिस्तान के साथ मिलके काम करेंगे तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। मैं क्योंकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसकी फुल सपोर्ट है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया, मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो मीडिया से दूर रहती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस बड़े प्लेटफॉर्म ने जो किया है ज़ोहैर नसीर साहब की लीडरशिप में, कि मीडिया को कंबाइन कर दिया है हेल्थ सेक्टर में, कि ऐसी चीज़ें बताई जा सकें जो आवाम और नास के लिए बेहतरी हो और प्रिवेंशन पे काम किया जाए इलाज से ज़्यादा। और उसके लिए ARYB ग्लोबल का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अपार्ट फ्राम ऑल अदर जो चैनल्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इस कॉन्फ्रेंस जो पहली है कि मेडिकल इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, कैसे कोलैब कर सकती है, नवेद हमारे दोस्त ने भी बताया। सो ये जो है एक अमेजिंग जो प्लेटफॉर्म डेवलप होता रहता है। कराची चैम्बर से भी लोग आए हुए हैं, तो बिजनेस जो आवाम, बिजनेस कम्युनिटी, कराची चैम्बर रिप्रेजेंटेड है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, डिप्लोमेट्स, जिमेट्रिया और दूसरे आए हुए, और उसके साथ साथ जो एक मिलिट्री की साथ जो कम्बिनेशन है, आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। वो इस बेंचमार्क इवेंट जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उससे हो रहा है, जिसका मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, जो स्पॉन्सर्स और जो अपने एग्जिबिटर्स हैं और जितने साइंटिस्ट आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, पेशावर, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, सक्खर, लाड़काना। इट्स एन अमेजिंग थिंग जो यहाँ पे हो रही है कि ये कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर हियर, सो आप लोग भी उनमें ही शामिल हैं। सो जिस तरह से शेर के साथ मैं ख़त्म करूँगा, अगर हम सब मिल के काम करेंगे और जो बदर एक्सपो की जो ज़ोहैर नसीर की लीडरशिप में, नेवी की लीडरशिप में, और सब मिल के जब हम काम करेंगे तो हमको मंजिल डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जब साथ चलते हैं, जैसे कि शेर है, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। सो थैंक यू। मेरी मदर भी आई हुई हैं, डॉक्टर सबिया ईसा, वो हमेशा सपोर्ट करती हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान के लिए ये सारी काविशें हो रही हैं। ये हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का मकसद ही अपने लोगों में सेहत के हवाले से वो तमाम अवामिल को उजागर करना है कि जिनकी ज़रूरत दिखाई देती है। एट द सेम टाइम अभी डॉक्टर फरहान ईसा साहब जो बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत अब हर शोबे में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, तो इस शोबे में भी
इसकी रिक्वायरमेंट वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, जिस पे हमें काबू पाने की ज़रूरत दिखाई देती है। और अब मैं मधु करूँगा वाइस चांसलर दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तमगाए इम्तियाज़ डॉक्टर समरीन हुसैन साहिबा को। प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। डॉक्टर समरीन हुसैन, वाइस चांसलर दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Chief Guest, Rear Admiral Muhammad Salim Hilal Imtiaz, Military Commander Karachi, all other dignitaries, my very dearest friend Farhan Isa especially, thank you. Farhan, आपकी बात पे जवाब देने का दिल चाह रहा था, so I'll start with a poetry because you actually trigger my nerve. जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए. So it is dedicated to you, Zuhair. So what we are talking today, it is like jaan hai to jahan hai. It's a very famous saying, as they say, health is your wealth, and this is probably the only wealth which is without tax these days in Pakistan. So on a lighter note, I appreciate the whole Badr Expo team, especially Zuhair, for putting this all together under one roof. I remember when he called me a month ago and he was asking me, like, I'm holding a health expo and you have to participate. I was like, I'm a vice chancellor of a University of Engineering Technology and I have nothing to do directly with the health service provision. But then he actually, convinced me, and then I thought, yes, he is right inviting me to this event because we are the service providers to the health providers, health service providers. Because if we don't make machines, if we don't, invent things, how would this health care will actually elevate to the next level? So that's why thank you, Zuhair, for making us part of it. And another thing that I see, PNS Shifa team and Commander Karachi Saab's presence, it shows a great bonding between like civil and military relationship. And I think it will passionate or it will be like, more patriotic approach towards this particular venture, that our youth can see what services are they providing, where are our shortcomings as in civil, setups that we see in a public sector regime. So, we can bridge the gap. We can learn from them how they are so efficient with the constrained resources and how we can't deliver with the similar or maybe a more resources. So this is a good learning for all of us. And I would encourage youth to engage with every professional that is coming in for 3 days and share their experiences. And thank you, Zuhair, for breaking the silos. Because all of us are working in silos. We are duplicating the efforts. We are replicating the efforts. We are not integrating it anyway. So this will be a good integration platform. In mathematics, we say, derivative, that is like, change with respect to time. This should not be zero for the progress of the nation. Change is required, but this change has to be integrated, where we has this long S as an integration symbol. Because all of you are probably from the medical background, and I am the only one who's from the maths background, and Zuhair is also an engineer. He will understand what I'm saying. So this is a good integration, I must say. When we thought like we should come, so I need to come up with a different thing. So what different do I bring here? I must introduce you that Dawood University is bringing gadgets for good. Because, as a nation, we follow the trend. We are pro-mobile and we are anti-mobile. But we don't see the pros and cons and we can't balance the usage. So we are trying to actually spread the awareness that gadgets can be used for the good also. So this is one. The another one is AI-based mind games for the mental health and well-being, which is very much requires these days in our society, never before, for the tolerance, to mitigate the extremist thoughts, and to replace them with the harmony, love, agree to disagree culture. And this is something we're going to display in our stalls. And the last thing I requested Zuhair that let me bring in Pakistan Nuclear Radiation Authority with me, so that, all of us know that these days radiology is the basic tool of diagnosis. But we should know the precautions, post-cautions, and we should be having awareness about those radioactive tests that we undergo.
So these are the three things we are coming up, and this is, I think, as a continuation of conference that I held at Dawood University, is blurring the barriers. As my colleagues spoke about interdisciplinary approach or multidisciplinary approach, this is not about just healthcare providers. It's also about engineers. It's also about the scientists who are not probably directly connected to the healthcare system, but indirectly they are helping a lot to this sector. And we are committed for all your endeavors in future. And I'm grateful for, inviting me here and giving this opportunity to address this August House. And once again, I would request you all to please visit Dawood University's stall and keep promoting these kind of endeavors taken by Badr Expo. They are coming up every time with a new idea. And I think we should, do the hand-holding rather than, having some certain vested interested for not doing something. Just come together, you will definitely find something new. And this is the world of change and evolution. And evolution comes with the out-of-box thinking. And this is one of the out-of-box thinking that he has done. And as a regulator, I'm looking forward towards the recommendations coming out of the conference, because this is just not an expo. This is a conference also. As an academic, as a regulator, member Higher Education Commission, I'm looking forward towards the recommendations coming out of that, the keynotes, speeches, recommendations, takeaway of the talks, so that we can pave the policy-making ways in the academia industry bridging thing. That is a very buzzword for last 10 years, but we don't see any bridging coming up. Probably this event can really bridge that gap. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Samreen Asim Tamghay Imtiaz Samreen Hussain, Vice Chancellor Dawood Engineering University. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और कोई भी इवेंट स्पॉन्सर्स के बगैर मुकम्मल नहीं होता, और अगर हम स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं तो वो बैकबोन होते हैं जो आते हैं और आने के बाद अपना हिस्सा डालते हैं, और हिस्सा डालने के बाद उस इवेंट की सक्सेस में उनका सबसे बड़ा रोल होता है. तो मैं कुछ अपने स्पॉन्सर्स के बारे में यहाँ आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आपसे पुरज़ोर इल्तिजा है कि आप लोगों ने उनको तालियाँ बजा के उनका खैर मकदम ज़रूर करना है. हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर्स मैडी फ्लो, आपकी तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए, ये सब आके साथ जुड़े. हमारे गोल्ड स्पॉन्सर डॉक्टर ईसा लैब एंड बोश फार्मा, उनके साथ हमारे सिल्वर पार्टनर्स फिटनेस डिपोट एंड BTL. इसके साथ साथ हमारे मीडिया पार्टनर्स ARY डिजिटल, ARY न्यूज़, मैडी वर्ल्ड एंड डेंटल हेल्थ. इसके साथ साथ हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स PNS Shifa and Dow, University of Health Sciences. Thank you very much. इनके साथ साथ in association with BEE Global, B Global, इनके साथ सेहतमंद पाकिस्तान, EZ Shifa and A Lab Advanced. Thank you very much all these sponsors. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. बदर एक्सपो सॉल्यूशंस आपकी बहुत बहुत मशकूर है. और उसके बाद मैं मदू करूंगा हमारे मुल्क की बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, और अगर आपके नी ख़राब हो जाएं तो इन्होंने वो शोहरत कमाई के जो फिर किसी के भी हिस्से में नहीं आई. उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया, लेकिन समाजी खिदमात में ऑर्थोपैडिक के शोबे में एक नुमाया मकाम रखते हैं. मैं मदू करूंगा हमारे मुल्क के रिनाउंड ऑर्थोपैडिक सर्जन एंड CEO सामान शिफा फाउंडेशन प्रोफेसर सैयद शाहिद नूर साहब को. आपकी पुरजोर तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शाहिद नूर. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, the Commander of Karachi, the Badr Expo, and ladies and gentlemen. This is a great event, as been said by my very good friend Farhan, that bringing everybody under one roof is a great event, and I'm grateful to the organizers that you have invited the galaxy of people around from every sector, from engineering universities, medical universities, industry, and lab. Unfortunately, healthcare has never been a priority in Pakistan for the last 75 years. I would say least of a priority.
less than 1% of GDP is spent on healthcare. And it is the private sector that has been providing healthcare to masses. I'm an orthopedic surgeon by profession, but I work as an orthopedic surgeon as a part-time now. And my main goal, I wear multiple hats, but Samaan-e-Shifa is my top hat at the moment. So I'll just take a couple of minutes. What is Samaan-e-Shifa? Healthcare provision requires three important pillars. One is human resource, which include doctors, nurses, paramedical, physiotherapists, diagnostic. And alhamdulillah, we are quite self-sufficient in healthcare, HR. The second is infrastructure, hospitals, clinics, operation theater, ICU. And the third most important is medical device. What is medical device? Medical device is a huge chunk starting from syringe to diagnostic to radiology to implant. According to WHO, there are 2 million medical devices, and which can be categorized into 7,000 categories. Unfortunately, in Pakistan, 90% of medical devices, including syringe and needles, are being imported, which produce a huge burden on the finance department of Pakistan. Whether you import it from China, you import it from Europe or North America, this is going to be converted into rupees, and both for private hospital, who is going to transfer this cost to the patient, for government sector, or for charitable institutions like Indus Hospital and Al Khidmat, they'll have to buy very, very expensive medical devices. And that would make healthcare very, very difficult and challenging and beyond the reach of masses in Pakistan. So with this background, I'm just going to spend 2 minutes on what is Samaan-e-Shifa Foundation. Samaan-e-Shifa is a registered foundation with SECP. It has senior doctors, engineers, industrialists, and the vision of Samaan-e-Shifa Foundation is affordable and accessible healthcare for humanity. Initially, we are going to start from Pakistan, but our vision is global. And our strategy is very focused, as I said about healthcare, 3 pillars. We are going to concentrate only on one pillar, which is indigenous manufacturing of all medical devices of international standard. It was a challenging and struggling phase, but you will be very pleased to hear that with the facilitation of Samaan-e-Shifa, which is the only organization in Pakistan which is connecting senior doctors, engineers, and industrialists under one umbrella. We've been able to facilitate manufacturing of ICU devices like ventilator, syringe pumps, and monitor on one hand. On the other hand, cardiology products, which are life-saving, cardiac stent, catheter, balloon. So ICU and cardiology are life-saving procedures which are becoming beyond the reach of masses. On the other hand, I lead orthopedic, so we've been able to facilitate manufacturing of all trauma implant in Pakistan of international standard and equipment. We have other sections like neurology, radiology, and this is going to increase. So we have partners in the form of SPDs in Pakistan that have great research and development equipment. And I'm pleased to say that the armed forces and the SPDs are opening up, and they are willing to share their research and development technology with civilian for production of medical devices. This year, our target is 20 medical devices. What is this going to do? Local manufacturing of medical devices is going to make healthcare affordable and accessible, number one. Number two, it is going to create industry and employment. And finally, we should be aiming to export these medical devices, which is going to bring very precious foreign currency to Pakistan. International market of medical devices might vary from $600,000 to $100,000.
And if we capture 1% of international medical device, 1% of medical device international market, Pakistan is going to get at least $6 to $10 billion. And if we capture 2%, it is going to bring $10 to $20 billion. So Pakistan cannot survive on exporting bed sheet and towels only. We have to produce value-added product. We have personnel, research and development. If we can produce missiles, atom bomb, fighter plane, we can produce medical devices. I'm going to stop here. I'm going to excite people who are on the stage, on the podium, that whoever is interested with the national cause, please contact Samaan-e-Shifa. Samaan-e-Shifa is a not-for-profit organization. We are not going to manufacture anything. We have gentlemen from Russia, so we will invite person from Russia, Turkey, and other places who will help us in manufacturing medical devices. So the way forward is very bright. Pakistan cannot survive on import and donation. ये कशकोल नहीं चलेगा. हमें अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा. We are an agriculture country, लेकिन unfortunately we import food product. So the future is bright, and inshallah together we'll make Pakistan a very strong country, which will be a hub of medical device manufacturing and export. Assalamu alaikum. Thank you very much, Professor Dr. Syed Shahid Noor Saab, orthopedic surgeon and CEO Samaan-e-Shifa Foundation. बड़ी सैर अफ़ज़ा गुफ्तगू की, ख़ासकर हमारी जो टॉपिक्स हैं आज के उनको रिलेट करते हुए. और अब मैं की नोट स्पीच के लिए मदू करूँगा. आज KCCI के प्रेसिडेंट मिस्टर इफ्तिखार अहमद शेख साहब तो तशरीफ़ नहीं ला सके थे, लेकिन हमारी खुशनसीबी है कि वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर तनवीर बारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट. सर मैं आपको मदू करूँगा मिस्टर तनवीर बारी, वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब ज़ुहैर नदीम साहब, MD बदर एक्सपो सोल्यूशन, जनाब रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम साहब, प्रोफेसर डॉक्टर फरहान निसा साहब, और हेड टेबल पे बैठे हुए तमाम लोग और ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइज़र्स, मैनेजमेंट और एग्जीबिटर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का मुनक्कद की. हेल्थ सेक्टर के सबसे पहले मैं कराची चैम्बर की बात करूँगा. कराची चैम्बर में हमारे तकरीबन 55,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंबर्स हैं, और हमारी तकरीबन 20 सब कमेटियाँ हैं, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन की भी सब कमेटी है. गो के हम ट्रेड इंडस्ट्री के हवाले से भी काम करते हैं, लेकिन हम हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से भी काम करते हैं. आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान के सूबाई बजट में जो है हेल्थ के लिए बहुत कम पैसा रखा जाता है, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम सूबाई हुकूमत को ज़ोर दें कि बजट में हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखें. जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो हेल्थ के सही काम नहीं करते, और हेल्थ के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत काम कर रहा है. और अगर ये प्राइवेट सेक्टर ना हो तो हमारे मुल्क में जो है हेल्थ की जो है और की जो सर्विस है वो बहुत ख़राब हो. और इसमें जो है मैं प्राइवेट सेक्टर को जो है मुबारकबाद और पेश करता हूँ और उनकी खिदमात को सराहते हैं. आपको जैसे पता है कि इसे SIFC एक इदारा कायम हुआ है, और इसमें जो है जो कोशिश की जा रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, और इसमें एग्रीकल्चर और सारी चीज़ों को जो है लेके चला जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट जो है आए. थोड़ी सी मैं इकॉनमी पे भी बात करूँगा कि जैसे 2023 में जो है पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गया था, और हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो तकरीबन माइनस पे चली गई थी. लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो फोरकास्ट हुई है कि हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो 2% होगी, और अगले साल जो है 2.5 से 3% होगी.
अभी भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो मुल्क हैं उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5% से ज़्यादा है और हम अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। देखिए, हेल्थ सेक्टर में हमारी कामयाबी जब ही अच्छी हो सकती है जब हमारी इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो। अगर हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी तो हमारा हेल्थ सेक्टर भी तरक्की करेगा। तो इसके लिए कराची चैम्बर और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बहुत काम कर रहा है और एग्जीबिशन कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं कि किसी तरह हमारी जो मईशत जो है वो सही सिम्त आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह सही सिम भी आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन हमारी जो राइस की एक्सपोर्ट है और दूसरे सेक्टर है, सीमेंट है और आईटी की एक्सपोर्ट है, वो थोड़ी बहुत बढ़नी शुरू हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी अगर मईशत ठीक होगी तो हम हेल्थ सेक्टर में भी जो है हम बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। अच्छा, मेरा तो ताल्लुक़ जो है थोड़ा सा बता दूं कि मेरे ट्रेड इंडस्ट्री से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो डॉक्टर हैं और डाउ यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है MBBS किया है और एक जो है इस वक्त आगा खान यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट में है और एक LRBT में है। तो थोड़ा बहुत जो है मेरा भी इसके हेल्थ के अंदर जो है मैं कहूँगा कि किरदार है। हमारी जो एक्सपोर्ट है फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स की वो सिर्फ 328 बिलियन है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम है और इसको जो है बढ़नी चाहिए। हमारा ये है सजेशन ये है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर मस्ट बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। There is a huge potential available for innovation and technology, and this platform provides opportunity for B2B meeting, discussion, establishing connection with local and foreign counterparts. आखिर में मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और मैं इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। हम कराची चैम्बर इस कामयाबी के लिए, इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए दुआ गो है कि इसको अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आमीन। शुक्रिया आपका। और अब जिस शख्सियत को मैं गुफ्तगू के लिए मदऊ कर रहा हूँ, आप बातचीत के लिए आ रहे हैं। हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2024 ने एक ख़ास रिकग्निशन के लिए, स्पेशल रिकग्निशन के लिए उनको मदऊ किया और वो डिज़र्व भी करते हैं। आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी समाजी खिदमात के हवाले से अपना एक नुमाया मकाम बना चुके हैं। और मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से बताऊं कि हमारे CEO ज़ुहैर नसीर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इनका एक पर्सनल गोल मैं कहता हूँ, इनको क्रिकेट का बहुत शौक़ है। उन्होंने एक कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का भी आगाज़ किया और वो हमारी लीग माशाल्लाह 3 एडिशन के अंदर अब ज़बरदस्त अंदाज से फलती फूलती दिखाई दे रही है। जैसे बदर एक्सपो सॉल्यूशंस अपने बाकी इवेंट्स करता है, वैसे ही हमारी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग भी खासी ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जा चुकी है। जावेद मियादाद साहब की प्रेसिडेंटशिप में, ज़ुहैर भाई की चेयरमैनशिप में, लेकिन वहाँ उनकी टीम भी है। तो मेरे पहले इतने ज़्यादा ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन वहाँ जब उन्होंने टीम ख़रीदी तो हमारी उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई। और मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक जगह पे हम थोड़े दोस्त फंस गए थे, एक ज़रूरी ऑपरेशन था एक बुज़ुर्ग हस्ती का। तो हमने फिर जब नहीं हुआ तो हमने इनसे रब्ता किया। आप यकीन करें, मेरे ख्याल है कि 15 से 20 मिनट लगे थे, हॉस्पिटल पैसे पहुंच गए थे और उनका ऑपरेशन शुरू हो गया था। इस तरह की समाजी खिदमात का इनका मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बाकी बात नहीं करूँगा, आप वो आएंगे तो ख़ुद बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुकर्रर हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। स्पेशल रिकग्निशन बाय हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2024 CEO JDC डॉक्टर जफर अब्बास, तमग़ा इम्तियाज। आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर जफर अब्बास, CEO JDC। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम इंतहाई मौजूद मेहमानों को सलाम करूँगा। डॉक्टर फरहान ईसा साहब, एडमिल साहब, ज़ुहैर नसीर साहब, जितने मेहमान बैठे हैं। मुझे नहीं मालूम मेरी तकरीर आपके लिए अच्छी होगी बुरी होगी,
मुझे बताया गया कि मसीहा बैठे हुए हैं, कौम के डॉक्टर और से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं। हमने जो काम किए हैं इस तिब के हवाले से, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं कंपाउंडर हूँ, ना मैं किसी लैब में घंटे काम किया हुआ हूँ, लेकिन मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा और इस इंडस्ट्री में हम क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे लफ्ज़ इंडस्ट्री बोलते हुए दुख होता है इस शोबे को, क्योंकि मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ। हमें तो जो काम कर रहे हैं किसी ने नहीं सराहा कभी भी लेकिन ज़ोहैर नसीर साहब ने जिस तरह कराची में डूबती हुई क्रिकेट को सहारा दिया, या कराची के अंदर दीगर जितने भी इवेंट ज़ोहैर नसीर साहब के होते हैं, वो एक रोशनी, एक उम्मीद की किरण होते हैं। क्योंकि कराची को दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद और यहाँ से बहुत कराची को अंधेरों में डुबो दिया गया था। तो मैं ज़ोहैर नसीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। देखें, हम कोविड में जब काम कर रहे थे, मैं बहुत मुख्तसर करके लेकर आ रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ इस डाइस पे। जब कोविड में काम कर रहे थे तो एडमिरल साहब आपके नेवी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमने सैलाब में हमने 25,000 राशन आपके साथ मिलके उन इलाकों में भेजा। मैं जानता हूँ वो राशन भेजने में आपके करोड़ों रुपए लगे होंगे। इसी तरह एयरफोर्स के साथ हमने 50,000 राशन भेजा, रेंजर्स के साथ 50,000 राशन भेजा, पाकिस्तान आर्मी के साथ हमने 89,000 मच्छरदानियाँ और खैमे और बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंध पुलिस के साथ। और अब मसला एक हमारे साथ ये आ रहा है, हम फलाई इदारा हैं, हमारे पास लोग आते हैं, वो आके हमसे बोलते हैं कि जी मुझे डायलिसिस कराना है, 14,000 रुपये दे दें। दे दिए 14,000 रुपये। अगले दिन फिर खड़ा हुआ है, क्या हुआ भाई, 14,000 रुपये फिर दे दें। तो यानी अगर महीने में 15 दफ़ा हम किसी एक मरीज़ को 14,000 रुपये दे रहे हैं, उसके लिए हम डोनर से कैसे रब्ता करेंगे? मुश्किल है। डोनर बोलेगा तुम्हारा हेल्थ सर्विसेज में कोई काम ही नहीं है, तुम किस बात का पैसा मांग रहे हो हेल्थ केयर के लिए? 10 करोड़ हो या 20 करोड़ या 25 करोड़, 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज़ हैं पाकिस्तान में। हमने अब से 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया। हमने कहा हम कराची के हर चौरंगी चौक चौराहे पे फ्री डायलिसिस सेंटर खोल देंगे और दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन लगाएंगे और हम डायलिज़र रीयूज़ नहीं करेंगे। हम ये रिस्क नहीं लेंगे कि मरीज़ हमारे पास डायलिसिस कराने आया है, उसका नाम मोहम्मद अशफाक है, टेक्नीशियन की गलती की वजह से उसको मोहम्मद अशफाक खान का डायलिज़र एक दिन लग गया और वो मरा एड्स में। हम ये रिस्क नहीं लेंगे। हम 700 रुपये महंगा डायलिसिस कर देंगे, हम 800 रुपये महंगा डायलिसिस कर देंगे। हम इस वक्त पर डायलिसिस 17,500 कर रहे हैं। सरजानी टाउन से लेकर लियारी तक हर चौरंगी पे हमने डायलिसिस सेंटर खोल दिया। उसके बाद दूसरे मरहले में गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, मलिर, कालाबोर्ड हमने डायलिसिस सेंटर खोल दिया। अभी सियालकोट तक में खोल दिया। हम ट्रांसप्लांट सेंटर खोल रहे हैं फैसलाबाद में। बहुत बड़ा मसला उसके बाद सामने आता है, मरीज़ आ रहा है, मेरे खून के टेस्ट हैं। अच्छा, आप ये मुझे नहीं मालूम आप में से कितने नौकरी पेशा और कितने बिजनेसमैन हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी तनख्वाह 70,000 रुपये 70,000 रुपीज़ है, वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस 2,000 रुपये नहीं दे सकता। मैं आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनकी फ़ीस 75,000 रुपये होगी या 1 लाख। 70,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी अपने घर का रेंट 35,000 रुपये 2 कमरे का देता है मलीर में, नई कराची में, और 15,000 रुपये उससे के इलेक्ट्रिक ले लेती है, 5 से 10,000 रुपये सुई गैस ले लेती है। 10,000 रुपये के राशन में कोई महीना अगर गुजार सकता है, मुझे हाथ उठा के बता दे। 10,000 रुपये में 5 बोरे 10 किलो वाला आटा आता है। अब वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से देगा? ना कि वो खून के टेस्ट कराए। जब खून के टेस्ट की बात आई, हमने बोला क्या करें, हम पैसे दे दे के थक गए हैं, हमारा महीने का खर्चा 20-22 करोड़ रुपए पे टोटल जा रहा है, उसके अंदर 5 से 7 करोड़ रुपए सिर्फ हेल्थ के ऊपर लग रहे हैं जो लोगों के टेस्टों में जा रहे हैं। हमने बोला हम फ्री लैब लेकर आएंगे पाकिस्तान में, हम लोगों से पैसा नहीं लेंगे, हम डोनर कंपनी CSR पार्टनर बनाएंगे। ये ज़ोहैर नसीर साहब बराबर में बैठे हैं, जो इवेंट करते हैं उसमें JDC इनका CSR पार्टनर होती है, बहुत बड़ी रकम देते हैं उसमें JDC को। उसके बाद देखने वाले को तो नज़र आ रहा होता है कि KTPL हो रहा है, कोई एग्जीबिशन हो रही है, कोई कव्वाली हो रही है, लेकिन उसके बाद एक रकम आती है बहुत बड़ी। हमने जब बोला भाई इसमें आएंगे लैब में, मालूम हुआ जी लैब तो एक मुश्किल शोबा है और कैसे होगा, और इस वक्त दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और मशीनें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। हमने राब्ता किया कि इस वक्त दुनिया की सबसे लेटेस्ट मशीन किसके पास है, तो मालूम हुआ जी होरा फार्मा के पास है। हमने उनसे राब्ता किया, हमने कहा अगर ये मशीन हम नुमाइश चौरंगी पे लगा दें जो कराची का सेंट्रल पॉइंट है, और हर शख्स आके अपना खून का टेस्ट फ्री में करा ले। उन्होंने कहा ऐसा हुआ नहीं दुनिया की तारीख में, कभी दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा। किसी चौक पे मशीन लग गई हो और पूरे शहर को, पूरे सूबे को दावत दे दी गई हो। मैंने कहा आप ये बात कर रहे हैं पूरे सूबे को? अच्छा मैं एक और बात बताऊं, इससे 3 महीने पहले मुझे एक जगह दी गई कि आप 28 मंजिला अस्पताल बनाएं, पैसा हम देंगे। एक डोनर थे और जगह भी मुझे मिल गई बहरिया टाउन के बिल्कुल सामने। मैंने कहा उसमें क्या होगा, उसमें 28 मंजिल पे जो मरीज होंगे 200-400, उन्हीं का फ्री में खून का टेस्ट होगा, उन्हीं के 2-4 ऑपरेशन होने, उन्हीं के जो भी मजीद चीज़ें होंगी। पूरा फार्मा वाले जो थे इनसे मीटिंग हुई, चौहान साहब से मीटिंग हुई, मैंने एक ऐलान किया। मैंने कहा मैंने ये अपने टेस्ट कराएं खैराती अस्पताल से। खैराती अस्पताल से मैंने अपने टेस्ट कराएं, जिसके उन्होंने मुझसे लिए 21,000 रुपये, और ये ऑप्शन भी दिया उन्होंने बहुत तेज़ आवाज़ में,
पूरे मजमे ने सुना वहाँ बैठे हुए कि अगर आप बोलें तो हम आपका 50% ज़कात काट दें। मैंने कहा यार ये लेवल कौन सा है। मैंने आके अपनी टीम को दिया, हौरा फार्मा के लोगों को दिया, मैंने कहा इन टेस्टों की असल कॉस्ट तो बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया जी ये 22,000 रुपये वाले टेस्टों की असल कॉस्ट है 1700 रुपये। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो क़यामत हो गई। मैंने हौरा फार्मा से रब्ता किया, मैंने कहा सर जी मशीन चाहिए दुनिया की लेटेस्ट तरीन, आज 8वां महीना है, नुमाइश औरंगी पे जाके देख लीजिए, रोज़ आना 35,000 खून के टेस्ट हम फ्री में कर रहे हैं, 1 रुपया लिए बगैर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त डेंगी और मलेरिया भी ऑटोमेशन पे कोई नहीं कर रहा होगा शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हम वो भी स्नाइप पे कर रहे हैं। स्नाइप के ऑनर यहाँ बैठे हैं एजाज मिर्ज़ा साहब। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारे जैसे इदारे को जो रोटी खिलाता था रोडों के ऊपर, राशन खिलाता था, हमें लाके इधर लगा दिया कि लोगों की जान बचाओ, लोग मर रहे हैं। अभी हम लैब में उतरे थे, नया मसला सामने आ गया। नया मसला क्या सामने आया भाई? कैंसर। जिसको देखो कैंसर, 3री स्टेज, 4थी स्टेज। क्यों भाई टेस्ट नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते? सरकारी अस्पताल जा रहे हैं 3 महीने बाद का नंबर मिल रहा है, प्राइवेट जा रहे हैं मेमोग्राफी, पेट सिटी स्कैन, 1.5 लाख का पैकेज, 5 दफ़ा तो होगा कम से कम। तो फ्लैट तो उसका सब बिक जाएगा 12-13 लाख में, कैसे ज़िंदा रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमने नुमाइश औरंगी पे अभी बहुत महंगी जगह ख़रीद ली है और हम शमीम शेखानी के नाम से कैंसर का अस्पताल खोलने जा रहे हैं फ्री, जिसके अंदर पेट सिटी स्कैन और मेमोग्राफी की मशीनें एजाज मिर्ज़ा साहब सामने बैठे हैं, इन्होंने फ्री में दी हैं, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में। मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। और उसके अलावा हम अभी इस वक्त प्रोटोन थेरापी की तरफ जा रहे हैं। प्रोटोन थेरापी पाकिस्तान में इस वक्त कहीं भी नहीं है। 12 से 13 अरब रुपए का ये पैकेज है और हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि हम इसमें कामयाब हों। और ये तमाम सर्विसेज हमारी जितनी भी हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यकीन जाने, मैंने आपको जो बात बताई ना कि हम डेंगू और मलेरिया भी ऑटोमेशन पे कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। ये वो मशीन है जो सब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। छोटी बात नहीं कर रहा मैं आपसे, ये सब आप फील्ड के लोग बैठे हैं, आप 2 मिनट में यहाँ आके मुझे झूठा साबित कर सकते हैं। तो हम तो इस लेवल पे लेकर चले गए। और मैं जानता हूँ, मैं आपसे इतना, मैं एक शिकवा कर सकता हूँ अपनी कौम से कि ये सब कुछ करने के बाद, मतलब एक महीने में 6-6 लाख डॉलर की किटें मंगवा रहे हैं सीमेंस कंपनी की और जर्मनी से, और उस पर लोगों के टेस्ट कर रहे हैं और फुली ऑटोमेशन पे। उसके बाद भी अब तक हमें किसी डॉक्टर ने फ़ोन करके ये नहीं बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। मेरी फील्ड नहीं थी ये, मेरा काम नहीं था। मैं और 1.5 लाख NGOs हैं कराची में, मैं उन सबको भी ये बात बोल रहा हूँ, खुदा के वास्ते इन कामों में पैसे नहीं लो लोगों से यार। हमारे लोग इलाज नहीं करा सकते। अगर आप में से कोई इदारा जानता है सरकारी कि जहाँ पर एक कैंसर का मरीज जाके पैसे ले ले अपने टेस्ट के, मुझे ज़रूर बता दिएगा। कोई रास्ता नहीं हमारे लोगों के पास। ज़ोहैर नसीर साहब और आप सबका शुक्रिया कि हमारी बात आपने लोगों तक पहुँचाई। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Zafar Abbas, CEO JDC। और जिस तरीके से अभी डायलिसिस के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे एग्जिबिटर भी हैं और चेयरमैन रहमान फाउंडेशन डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये भी फ्री डायलिसिस पूरे मुल्क में कर रहे हैं और एज एग्जिबिटर के तौर पे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और अब मैं मदू करूँगा आपकी पुरजोर तालियों में हमारी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के ऑनरेबल चीफ गेस्ट कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, आपकी पुरजोर तालियों में ऑनरेबल चीफ गेस्ट रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, कमांडर कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। Mr. Zuhair Nasir, CEO, Badr Expo Solutions, dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed an immense honor and privilege for me to have been invited as chief guest to the first ever Healthcare Expo of Pakistan. I would like to take this opportunity to thank CEO of Badr Expo, Mr. Zuhair Nasir, Dr. Abbas Sheikh, Mr. Tanveer Abdullah, and other members of the group who came up with the idea
of bringing every entity related to healthcare on a single platform. You all deserve commendation and appreciation for this noble cause. Ladies and gentlemen, health is a human right, and in that, every person in our society must be afforded with adequate health care. However, in our resource-constrained environment, every tier has to work hard to make this goal a reality. Ladies and gentlemen, this expo is one such intervention, not only for the organizers to plan different academic sessions that will provide latest knowledge and skills to our healthcare workers and health-related professionals, but has also brought together leaders of entire healthcare industry, which is in itself a big achievement. This will certainly open many doors towards making those critical strategic decisions that will certainly contribute in our course towards minimizing health-related issues. I am sure that you will benefit from panel discussions, talks, presentations by subject matter experts and professionals coming from all over the country and abroad. Ladies and gentlemen, Pakistan Navy is proud to be a strategic partner in this endeavor and, like always, will work together to bring betterment in our beloved country in any capacity. On behalf of Pakistan Navy, I thank you all for considering us as a worthy contributor. In the end, I would like to assure you this expo will definitely bring significant improvements in our healthcare delivery system, and would like to thank once again all the organizing committee members on behalf of Pakistan Navy and Headquarter Commander Karachi and my entire team to have invited us and making us a partner in this mega event. I thank you all. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Paindabad. Thank you very much, Honorable Chief Guest, Rear Admiral Mohammad Salim, Hilal-e-Imtiyaz Military Commander Karachi. सर आप तशरीफ़ लाएंगे नीचे यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए, और जितने लोग भी हमारे स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब नीचे तशरीफ़ लाएंगे. इनॉग्रेशन होगी, इनॉग्रेशन के बाद कुछ मोमेंटो तकसीम किए जाएंगे. हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2024 का बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है. अब मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूंगा, 3 और लोग भी हैं कि जो आके ज्वाइन करेंगे, जिसमें डॉक्टर जफ़र अब्बास साहब CEO JDC, मिस्टर नासिर खान साहब GM Bosch Pharma and Mr. Agha Faisal Director ARYB Global. Please sir, आप सब लोग भी आगे आइएगा. और आप हम तब काउंट करेंगे सब मिलके, उसके बाद इनॉग्रेशन होगा. 3, 2, 1. हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2024 की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई यहाँ एक्सपो सेंटर कराची में, जिसके बाद हमारे मुल्क का इंतहाई अहम इवेंट जो सेहत के साथ जुड़ा हुआ है वो बाकायदा शुरू हो गया. थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चीफ गेस्ट वंस अगेन. और यहाँ कुछ मोमेंटोज हैं जो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की जानिब से दिए जाएंगे. मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम, हिलाल-ए-इम्तियाज़ मिलिट्री कमांडर कराची से कि सर सबसे पहले आप मोमेंटो पेश करेंगे. सईद कुरैशी साहब तो नहीं है, प्रोफेसर नवेद कुरैशी साहब को.
मोमेंटो पेश किया जाएगा। ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर नवेद कुरैशी साहब को मोमेंटो पेश करेंगे, प्रिंसिपल लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। उसके बाद ऑनरेबल चीफ गेस्ट कमांडर कराची मोमेंटो पेश करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला, CEO डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। और इसके बाद रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम हिलाल इम्तियाज मिलिट्री कमांडर कराची मोमेंटो पेश करेंगे, डॉक्टर समरीन हुसैन तमगा इम्तियाज वाइस चांसलर दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मोमेंटो पेश किया जाएगा प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शाहिद नूर साहब को, ऑर्थोपैडिक सर्जन एंड CEO सामान्य शिफा फाउंडेशन। ऑनरेबल चीफ गेस्ट ये मोमेंटो पेश करेंगे। उसके बाद ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर तनवीर बारी वाइस प्रेसिडेंट KCCI को मोमेंटो पेश करेंगे। ऑनरेबल चीफ गेस्ट रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम हिलाल इम्तियाज मिलिट्री कमांडर कराची अब मोमेंटो पेश करेंगे, डॉक्टर जफर अब्बास CEO JDC। और ऑनरेबल चीफ गेस्ट अब मोमेंटो पेश करेंगे GM बोश फार्मा मिस्टर नासिर खान को। एंड ऑनरेबल चीफ गेस्ट आखिरी मोमेंटो पेश करेंगे मिस्टर आगा फैसल डायरेक्टर ARYB ग्लोबल। और उसके बाद एक मोमेंटो हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की जानिब से है, जो CEO मिस्टर ज़ुहैर नसीर आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम हिलाल इम्तियाज मिलिट्री कमांडर कराची को मोमेंटो पेश करेंगे, मिस्टर ज़ुहैर नसीर CEO बदर एक्सपो सॉल्यूशंस। इसके बाद ग्रुप फोटो होगा और डॉक्टर जियाउल आबिदीन साहब से रिक्वेस्ट है सर आप भी ग्रुप फोटो में शामिल होंगे। जिया साहब प्लीज सर तशरीफ लाइएगा। थैंक यू वेरी मच रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री कमांडर कराची आज हमारी इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी बने। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम डिग्निटरीज़ जो आज के इस फंक्शन में मौजूद थे आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तमाम एग्जिबिटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ऑनरेबल चीफ गेस्ट विजिट करेंगे डिफरेंट हॉल्स का, लेकिन आप सब लोगों के लिए हाई टी रेडी है। थैंक यू वेरी मच एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लोगों की सेहत को बेहतर बनाएंगे।